Welcome back, beta. We have already discussed three virtues: wisdom, courage, humanity, and the related defining features of them and the character strengths related to them. Now we will discuss the remaining three virtues. So the fourth virtue is justice, beta. Justice का defining feature है बेटा civil strength, और इसका character strength है बेटा number one fairness, number two leadership, और number three टीम वर्क। तीन करेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं बेटा। जो फेयरनेस है, फेयरनेस का मतलब है ट्रीटिंग ऑल पीपल इक्वल, ये बड़े छोटे का भेदभाव नहीं रखना, एक रिलीजन का दूसरे के साथ नहीं। सो यू आर डूइंग जस्टिस, यू आर अ जस्ट इंसान जो किसी बायस स्टीरियोटाइप के बेस के ऊपर किसी भी डिसीजन को नहीं लेता है। नंबर टू बेटा लीडरशिप, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, you organize group activities and see that they happen. आप खाली आप में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप अकेले काम नहीं करते हो, आप टीम स्पिरिट के साथ काम करते हो, आप हर एक को चांस देते हो, आप जस्टिस से चांस देते हो, और आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, आप लीड करते हो, आप दूसरों को काम देने से पहले वो काम पहले खुद करते हो, टीम वर्क में बिलीव करते हो और पूरा अपनी निगरानी में काम करते हो। आप देखते रहते हो एज अ लीडर कि जस्टिस हो रहा है, हर बच्चा काम कर रहा है, एक ही को काम तो नहीं दिया हुआ, सारी क्लास इन्वॉल्व है कि नहीं है, जो भी आप काम करते हैं। देन इज़ बेटा टीम वर्क। एक गुड लीडर, जैसे मैंने ये कहा, वो है जो दूसरों के अंदर की गुड क्वालिटीज़ को बाहर निकाले, जो हमेशा अपने में विश्वास, आगे होने में विश्वास नहीं करे, वो दूसरों को टीम स्पिरिट के साथ में आगे करे। वर्किंग वेल विद मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और टीम इज़ टीम वर्क इज़ अ गुड करेक्टर स्ट्रेंथ बेटा। जिन बच्चों में, जिन जिन एडल्ट्स में, जिन बड़ों में टीम वर्क नहीं होता बेटा, वो सक्सेसफुल नहीं होते, उनको लोग लाइक नहीं करते। दे से ही इज़ नॉट अ गुड लीडर, ही डज़ नॉट involve his peers, he does not involve his class, he does not involve others, he does not involve society, and he does not he's not a good leader, he even does not know about anything. So we talked about justice as a virtue and defining strength थी justice की civil strength बेटा। civil means society की बात, civic sense, इस society का जो system है उसकी बात। फिर हमने बात की बेटा character strengths जो related justice से हैं, तो हमने बात की fairness, leadership और teamwork। बेटा fairness का मतलब treating all people the same according to the notion of fairness and justice। leadership का मतलब है organizing group activities and seeing that they happen, and then teamwork, working well with members of a group or team. So I hope you have understood it. Our next this thing is temperance beta. Next virtue is temperance. Defining strength has strengths that protect us against excesses, temperance means कि balance of everything, excess नहीं वो करना। तो इसकी character strength है बेटा forgiveness, modesty, prudence. Forgiveness means forgiving those who have done wrong to you or your own people. So temperance का सबसे पहला character strength है forgiveness. Number two, modesty, letting one's accomplishment speaks for themselves. अपनी तारीफें अपने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना बेटा। आपका काम आपके बारे में बताए, आप करके दिखाएं कि आप ये कर सकते हैं, और तब पता चले। if I'll speak that I love you all and I don't do anything for you, I don't, so you will never believe into my I love you to you. But if day and night I'll work for you beta, only then you are going to trust me that yes, this is our teacher and she loves us, और हमारे लिए ये कुछ भी कर सकती हैं, and she is very generous. So modesty होना, then you will say this teacher is a modest teacher because whatever she says she does for us. Okay beta. Then is prudence beta, being careful about one's choices and not saying or doing things that might be regretted. Prudence beta, नाप तोल के बात करनी, नाप तोल के एक्शंस करने। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उसकी जिम्मेवारी खुद लेनी, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी बाद में आपको पछताना पड़े, और स्पेशली जब आपकी गलती से दूसरों को पछताना पड़े। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट प्रूडेंस।
The last virtue बेटा, the sixth virtue is transcendence. Transcendence का मतलब है बेटा, इसकी defining feature है strengths that connect us to the larger universe. You know, you transcend एक narrow अपनी सोच से लेके, अपनी family के फ़ायदे की सोच से लेके, अपने society के फ़ायदे के circle से गुजर के, then universe, then whole humanity. You transcend मतलब आप increasingly ऊपर बढ़ते जाते हो. पहले आप अपना भला करते हो, फिर अपने लव्ड वंस का, फिर उनका जिनको आप जानते भी नहीं हो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, फिर आप अपनी कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री, दूसरे कॉन्टिनेंट में, और फिर पूरे यूनिवर्स का. सो यू ट्रांसेंड, यू नो, यू ट्रांसेंड ब्यूटिफुली. और बेटा ट्रांसेंड की जो करेक्टर स्ट्रेंथ्स है, नंबर 1 है बेटा सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलेटिंग व्हाट वन फील्स एंड डज. रेगुलेशन, सेल्फ की रेगुलेशन करना कि मैं जो सोचती हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें सोचती हूँ, ह्यूमैनिटी की सोचती हूँ, सोसाइटी को ठीक करने के बारे में सोचती हूँ, लेकिन मैं जो सोचती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, मैं वो करती भी हूँ. मीन सेल्फ रेगुलेशन बेटा. नेक्स्ट करेक्टर स्ट्रेंथ है बेटा ट्रांसेंडेंस की, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड एक्सीलेंस. जो भी मेरी नज़र में आप में से जितने भी 112 114 बच्चे हो, आप में से किसी की कोई इनर ब्यूटी मुझे दिखती है, सो आई शुड अप्रिशिएट. आपका कोई अच्छा क्वालिटी मुझे दिखती है, सो आई मस्ट अप्रिशिएट. इट मीन्स अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड एक्सीलेंस. और ब्यूटी का मतलब बेटा खूबसूरती, बाहरी खूबसूरती नहीं. ब्यूटी का मतलब कि अगर मुझे आपका दिल काइंड नज़र आया, अगर आपका कुछ अच्छा काम नज़र आया, तो वो मैं उसके बारे में सबको बताऊँ. सो नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग ब्यूटी, एक्सीलेंस एंड स्किल्ड परफॉर्मेंस इन ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ. आप जो करते हो उसको अप्रिशिएट करना. थर्ड है बेटा ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड, बीइंग अवेयर ऑफ एंड थैंकफुल ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैपन. अगर थैंक गॉड करना कि शुक्र है आज मैं बचा हुआ हूँ, शुक्र है, तो ये शुक्र करना, ग्रेटिट्यूड बेटा, ये आपका एक करेक्टर स्ट्रेंथ है. जो लोग शुक्र करते हैं, जो लोग ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं एक दूसरे की तरफ, किसी ने हमारे लिए अगर अच्छा काम किया है, हम थैंक यू करें, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन इज़ बेटा होप. सो नेक्स्ट करेक्टर इज़ होप. यू आर होपफुल. आप होपलेस नहीं हो लाइफ में. आप आपके पास कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया, बट स्टिल यू हैव वन होप, और उस होप की वजह से आप अपने काम और दूसरों के काम करते हैं. देन इज बेटा ह्यूमर. ये सब करते करते कहीं आप सीरियस तो नहीं हो गए हो, कहीं आप हमेशा सीरियस नहीं रहते हो. तो लाइफ को जीने के लिए बेटा ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है, कि किस टाइम में हंसना, किस टाइम में स्माइल करनी, किस टाइम अप्रिशिएट करना, लाइफ की हैप्पीनेस को बढ़ाना, दूसरों को खुश रखना. एंड देन बेटा सबसे लास्ट करेक्टर स्ट्रेंथ है रिलीजियसनेस. हैविंग कोहर्ट बिलीव्स अबाउट द हायर पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ. ये वो रिलीजन नहीं है कि somebody is Hindu, somebody is Muslim. No, beta, this religiousness is that you are religious, you are spiritually religious. You know कि you have to die one day and you have to accomplish. Thank you so much. With this, we have completed this unit, and very shortly I am uploading a video जिसमें मैं आपको छोटी छोटी बातों के बारे में बताऊंगी how to go for this unit. Thank you so much.